अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, द टू सिस्टर्स, ये जो लेसन हमने पढ़ी थी, लेसन नंबर 6, क्लास जो है 7th वालों की है, ये हमने पढ़ी थी यहाँ से यहाँ तक एक पैरा। तो आज हम करेंगे स्टार्ट दूसरा पैरा। तो लिसन टू मी केयरफुली। Then being a kind, obliging little girl, she stopped, put down her bundle, took out the bread, and went on her way, saying, "You will be more comfortable now." After a time, she came to a cow lying beside an empty pail, and the cow said to her, little girl, milk me, please, milk me, please. 7 years I have been waiting, but no one has came to milk me. So the kind girl stopped, put down her bundle, milked the cow into the pail, and went on her way, saying, "Now you will be more comfortable." By and by she came to an apple tree so laden with fruits that its branches were nigh to break, and the apple tree called to her, little girl, please shake my branches. The fruit is so heavy that I can't stand straight." Then the kind girl stopped, put down her bundle, and shook the branch so that the apples fell off and the tree could stand straight. Then she went on her way, saying, "You will be more comfortable now." So she journeyed on till she came to a house where an old witch lived. Now this witch wanted a servant maid and promised good wages. Therefore the girl agreed to stop with her and try how she liked the service. She had to sweep the floor, keep the house clean and tidy, the fire bright and cheery. But there was one thing that the witch said she must never do, that was look up the chimney. "If you do," said the witch, "something will fall down on you and you will come to a bad end." Well, the girl swept and dusted and made up the fire, but never a penny of wages did she see. Now the girl wanted to go home as she did not like witch service, for the witch used to have boiled flesh for supper and bury the bones under some stones in the garden. But she did not like to go home penniless, so she stayed on sweeping and dusting and doing her work just as if she was pleased. Then one day, as she was sweeping up the hearth, down tumbled some sooth, and without remembering she was forbidden to look up the chimney. She looked up and see where the sooth come from, and lo and behold, a big bag of gold fell plump into her lap. जैसे कि आप सब जानते हैं, ये दो बहनें होती है। इनका जो ये बाप होता है, ये कोई काम शम नहीं करता है, तो ये डिसाइड करते हैं कि हम खुद काम करेंगे। तो जो बड़ी बहन होती है, ये दिल से बहुत अच्छी होती है। जो दूसरी होती है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। तो पहले बड़ी बहन निकलती है अपने काम से, ये अपनी बहन से कहती है, पहले मैं अपना लक आजमाऊंगी, उसके बाद जो मैं करूंगी आप उसको फॉलो करोगे। तो ये निकलती है अपने काम से। फिर ये अपने शहर से बहुत दूर जाती है, जहाँ पे उसको एक तंदूर मिलता है, जहाँ पे उसको रोटियां बुलाती हैं कि हमें इस तंदूर से आप बाहर निकाल दो, हम पिछले 7 सालों से इस तंदूर में जल रहे हैं। ठीक, तो फिर ये इनको वहाँ से निकालती है इन रोटियों को, तो उनको जलने से बचा लेती है। Then being a kind, obliging little girl, she stopped, put down her bundle, took out the bread, and went on her saying, "You will be more comfortable now." जैसे ही इन रोटियों को उस तंदूर से निकालती है, तो वो फिर उन रोटियों से कहते हैं कि आप अब कंफर्टेबल रहो। After a time she came to a cow lying beside an empty pail, and the cow said, little girl, milk me, milk me. 7 years I have been waiting, but no one has come to milk me." जैसे ही फिर ये आगे बढ़ती है, तो इसको एक गाय मिलती है। तो गाय इसको भी बुलाती है, लिटिल गर्ल, प्लीज आप मुझसे मेरा दूध ले लो, पिछले 7 सालों से मुझसे किसी ने दूध नहीं लिया है।
तो लिटिल ये जो लड़की होती है ये एक मतलब पेल पेल हम कहेंगे खाली बर्तन, चाहे वो बास्केट हो या कुछ भी हम कह सकते हैं, ये उठाती है तो इसका ये दूध लेती है. सो द काइंड गर्ल स्टॉप्ड, पुट डाउन हर बंडल, मिल्कड द काउ इनटू द पेल एंड वेंट ऑन हर सेइंग नाउ यू विल बी मोर कंफर्टेबल. तो ये जब इसका ये दूध लेती है इसको भी कहती है कि आप अब कंफर्टेबल रहोगे, सेटिस्फाई. By and by she came to an apple tree so laden with fruits that its branches were nigh to break, and the apple tree called to her. जैसे ये आगे बढ़ती है तो ये एक इसको एक सेब का पेड़ मिलता है. सेब के जो मतलब पेड़ के जो ब्रांच होते हैं वो ज़मीन से टच होते हैं, मतलब जो सेब होते हैं ये ब्रांच पे होते हैं जिससे उसके ब्रांच बहुत ज़्यादा बारी हुए होते हैं. तो ये एप्पल ट्री इसको बोलता है प्लीज़ मतलब मुझे थोड़ा सा इन ब्रांच को हिला दो ताकि जो ये एप्पल्स है ये गिर जाएंगे और मैं स्ट्रेट रहूँगा. द फ्रूट इज सो हैव आई कैन स्ट्रेट, ये इसको कहते हैं प्लीज़ आप इन ब्रांच को शेक कर दो, ये जो फ्रूट्स है ये मुझ पर मतलब बहुत ज़्यादा भारी है जिसकी वजह से मैं स्ट्रेट नहीं रह पाता. देन द काइंड गर्ल स्टॉप्ड, पुट डाउन हर बंडल एंड shook the branch so that the apples fell off and the tree could straight forward. Then she went on her way saying you will be more comfortable now. जैसे इन ब्रांच को हिलाती है जो सारे एप्पल्स होते हैं ये गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं. इसको भी कहती है कि आप कंफर्टेबल रहो. So she journeyed on till she came to a house where an old witch lived. जैसे वो फिर अपना सफ़र मतलब जारी रखती है तो चलते चलते इसको एक मकान मिलती है जो जिसमें एक विच होता है डाइन, जहाँ पे एक डाइन रहती है. Now this witch wanted a servant maid and promised good wages. तो जो ये डाइन होती है इसको एक मेड मतलब जो काम करे, घर पे काम करने वाली चाहिए होती है. तो इसको बोलते हैं अगर आप रुकोगे मेरा काम शाम करोगे मैं आपकी एक अच्छी पेमेंट दे दूंगी, जहाँ मतलब जितना आप काम करोगे. Therefore the girl agreed to stop with her and try how she liked the service, and had to sweep the floor, keep the house clean and tidy, and fireboard and cherry. तो ये अपना काम ये मतलब गर्ल जो है ये मान जाती है, अपना काम स्टार्ट करती है, डस्टिंग करती है, मतलब जो भी घर का काम होता है ये सब कुछ कर देती है. बट देयर वॉज वन थिंग द विच सेड वी मस्ट डू एंड शी वॉज लुकिंग अप द चिमनी. तो जैसे ही काम अपना स्टार्ट करती है इसको ये डाइन कहती है कि आप सब कुछ करना, सारे काम आप करोगे, बट एक काम आप नहीं करोगे. वो काम ये होता है कि जो ऊपर लगी होती है चिमनी आप उसकी तरफ टोटल नहीं देखोगे. If you do, said the witch, something will fall down on you. ये इसको कहती है कि अगर आपने चिमनी की तरफ देखा तो आप पे कुछ गिरेगा और आपकी जो है मतलब आपका बुरा एंड्स हो सकता है. Well, the girl swept and dusted and made up the fire, but never a penny of wages did she. Now the girl wanted to go home and she did not like witch service. For the witch used to have boiled flesh for supper. and bury the bones and some stones in the garden. ये जो गर्ल है ये सोचती है कि मतलब मैं घर जाना चाहती हूँ. ये विच सर्विस अब पसंद नहीं करती क्योंकि उसको अभी तक कुछ पे नहीं करा था इन कामों का. ये जो विच होती है शाम के खाने में गोश्त बॉयल करके रखती है और इसकी जो हड्डियाँ होती है गोश्त की वो एक गार्डन में स्टोन के तले दफना देती है. गर्ल चाहती है कि मैं घर जाऊं बट वो फिर से सोचने लगी मैं पैसों के बगैर घर जा नहीं सकती, इसलिए उसने अपना ये जो काम है जारी रखा. Then one day, as she was sweeping up the hair down the tumbled, some soot, and without remembering she was forbidden to look up the chimney, she looked up to see where the soot came from, and lo and behold, a big bag of gold fell plump into her lap. तो एक दिन क्या हुआ कि ये अपना काम कर रही थी ये चूल्हे के सामने कुछ साफ सफाई कर रही थी कि अचानक से कुछ गिरने लगा, कुछ पाउडर जैसा गिरने लगा. जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा कि ये धूल जैसी कुछ गिर रही है बाहर से, मतलब नीचे जमीन पे, ये कहाँ से आ रही है. तो इसने चिमनी की तरफ ऊपर देखा क्योंकि ये भूल गई थी कि इसको चिमनी की तरफ देखना नहीं था. And lo and behold, a big bag of gold fell plump into her lap.
ये ध्यान से देख रही थी ऊपर की तरफ, तो एक अचानक से एक सोने का बहुत बड़ा सा बैग इसकी गोद में गिर पड़ा। मतलब इसको लगा कि कुछ भारी चीज की जो आवाज होती है वो आ गई, तो इसने इसकी गोद में जो सोने का थैला पड़ गया। तो कुछ जो है आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कुछ जो है वर्ड्स ये मैंने लिख के रखे हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुमारो। हैव अ गुड डे।